You saw curses. आपने श्राप देखे हैं, You saw losses. आपने नुकसान देखा You है, saw pain. आपने दर्द देखा है, You saw unjust criticism. आपने अन्याय करके आरोप लगाते हुए देखा You है, saw wrong accusation. आपने झूठे आरोप लगाते हुए You देखा saw है, obstructions. आपने विरोध को देखा है, You saw the works of the demon powers. आपने दुष्ट आत्माओं के कामों को देखा है। Now you will experience the blessings from God. लेकिन अभी आप परमेश्वर की ओर से आशीषों का अनुभव करेंगे। I declare this blessing from God in the name of Jesus upon your life. आपके जीवन पर यीशु मसीह के नाम में मैं इन सारी आशीषों की घोषणा करता हूँ। Upon these servants of God. परमेश्वर के इन दासों पर Let there be showers of blessing now. अभी आशीषों की वर्षा हो And जाए a great और increase. बड़ी बढ़ोतरी हो। Father, do it, Lord. पिता अभी से कीजिए, Do it, Lord. आप इसे कीजिए Right now. अभी इसी समय, In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you for your love for your children. आपकी संतानों के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। No more tears. और कोई आंसू नहीं, No more darkness. और कोई अंधकार नहीं, Only blessing, blessing, blessing in Jesus' name. केवल आशीष 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 यीशु के नाम में। Would you say amen? क्या आप कहेंगे आमेन? Amen. आमेन। And now the Bible says in Malachi 3:10, और मलाकी 3:10 में बाइबल कहती है, God says, परमेश्वर कहते हैं, when you bring your offerings to me, जब तुम मेरे पास अपनी भेंट लेकर आते हो, I will throw open the floodgates of heaven और मैं तो आकाश के झरोखे खोल दूंगा and pour out so much blessing that you will not be able to hold it. और मैं इतनी आशीष उंडेलूंगा कि तुम उसे थाम नहीं पाओगे। You will not have enough rooms to store the blessing. आशीषें रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी, You'll not have enough vessels. तुम्हारे पास उतने पात्र नहीं होंगे, You'll not have enough lockers to hold the blessing. और तुम्हारे पास लॉकर्स काफी नहीं होंगे कि उन आशीषों को थामे रहे। I will pour the blessing. मैं आशीष उंडेल दूंगा। Say after our dear brother, Lord, pour the blessing. आप मेरी बात में दोहराइए, प्रभु अपनी आशीष उंडेलिए। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में, let it be so. और ऐसे ही होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद You यीशु। will have God's blessings poured from now on. It's coming right now in Jesus' name. परमेश्वर की आशीष उंडेली जारी अभी यीशु के नाम में वो आ रही है। The sound of the abundance of rain is coming in the name of Jesus. बहुत आयत की वर्षा की जो आवाज है वो तो यीशु के नाम में आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। It's coming right now ये अभी इस समय आ रही है, because of the love Jesus has for you. यीशु ने आपके लिए जो प्रेम रखा है उसके कारण। Just praise Him. बस उसकी स्तुति करें। And the Bible says और बाइबल कहती है in Hebrews 4 and verse 3, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 3 में, every blessing that God has for you is already written in heaven. और आपके लिए जो परमेश्वर ने आशीष रखी है हर एक आशीष वो तो स्वर्ग में लिखी गई है। Even before the foundation of the world, every blessing that you should have is already finished. It's already planned. It's already established on your behalf in heaven. और जो कुछ भी परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर ने योजना बना के रखी है, जो स्वर्ग की ओर से है, वो जो सब कुछ जो है परमेश्वर ने बना कर रखा है वो आपके लिए पूरा कर दिया गया है। Yes, God has already planned every blessing for you. परमेश्वर ने आपके लिए हर एक आशीष की योजना बना कर रखी है। My father had a vision when he was very sick at the age of 34. 34 साल की उम्र में जब मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हुए थे उस समय उन्होंने एक दर्शन पाया। He was vomiting blood, वो खून की उल्टियां करते थे, about to die. वो बिल्कुल मरने पर थे। At that moment, the Holy Spirit lifted him up to heaven. और उस पल पवित्र आत्मा ने उन्हें स्वर्ग में ऊपर उठाया। It was his spirit. ये तो उनकी आत्मा थी। And he saw an angel. और उन्होंने वहां स्वर्गदूत देखा। He was writing and writing on scrolls. और वो तो हस्तलेखों के ऊपर लिखते चले जा रहा था। Behind him were millions of scrolls. और उसके पीछे ऐसे लाखों हस्तलेख थे। And the Holy Spirit showed him. और पवित्र आत्मा ने उन्हें दिखाया। The angel was writing the name of every person who was to be born in the world. और स्वर्गदूत तो उस हर एक व्यक्ति का नाम लिख रहा था जो इस संसार में जन्म लेने वाला था। When they would be born. और जब वो कब जन्म लेंगे, What would happen in their life? उनके जीवन में क्या होगा, Day wise. उसी के अनुसार, Minute wise. दिन के अनुसार, मिनट के How अनुसार, God would give them an opportunity
to accept him as Lord. और कैसे प्रभु उन्हें मौका देंगे कि वो उससे प्रभु के रूप में स्वीकार करें। Everything was written. सब कुछ लिखा गया। Even today, और यहाँ तक कि you आज must know everything for your blessing is written in heaven. आपको जानना होगा कि आपके लिए हर एक आशीष स्वर्ग में लिखी हुई है। But then it didn't stay just in heaven. लेकिन वो केवल वहीं पर स्वर्ग में ही नहीं रहती है। The Bible says in Jeremiah 29:11, यिर्मयाह 29:11 में बाइबल कहती है, God's plans for us are unto giving us a future and a hope, परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए, ये तो आपको भविष्य और आशा देने के लिए है, not to harm us. आपको चोट पहुंचाने के लिए That नहीं। is God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Because of our sin and arrogance, we get harm in our lives. हमारे पाप के कारण और अहंकार के कारण हम अपने जीवन में हानि उठाते हैं, Because of our disobedience and unbelief, we get harm in our lives. और हमारे आज्ञा भंग करने के कारण और अविश्वास के कारण हमें हानि उठानी पड़ती है। Because of the devil and the evil powers, we get harm in our life. और दुष्ट और शैतान की सामर्थ के कारण हम अपने जीवन में नुकसान पाते हैं। Never blame God, परमेश्वर पर दोष मत लगाइए, but always say, God, you're a good God. लेकिन हमेशा कहिए, परमेश्वर आप तो भले परमेश्वर हैं। God is good. परमेश्वर भले His हैं mercies endure forever. और उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। All things work unto good for those who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न At करती है। all times love God. और हर समय परमेश्वर से प्रेम करें। Never blame God, परमेश्वर पर कभी दोष मत लगाइए, but analyze yourself लेकिन अपने आप को जांच लीजिए and get into the Word of God and the Spirit of God to drive the devil. और आप परमेश्वर के वचन में आइए, परमेश्वर की आत्मा में आकर आप शैतान को भगाइए। Believe God has everything unto good for you. विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ भला रखा है। Say, Lord, you are a good God. आप कहिए, प्रभु आप तो भले परमेश्वर हैं, You will only do good for me. आप मेरे लिए केवल भलाई करेंगे, You have planned only good things for me. आपने मेरे लिए केवल भली बातों की योजना बनाई है। I believe. मैं विश्वास I करता हूं, believe. मैं विश्वास I करता हूं, believe. मैं विश्वास करता Thank you, Jesus. हूं। धन्यवाद यीशु। Amen. आमेन। He will do good things. वो भले काम करेंगे। And the Bible says in Ecclesiastes 3:1 and 11, और सभोपदेशक अध्याय 3 और वचन 1 और 11 में बाइबल कहती है, God has an appointed time for every blessing to come into your life. परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है कि हर एक आशीष आपके जीवन में आ जाए। Everything that has to happen under the heaven, God has a time for it. स्वर्ग के नीचे जो कुछ भी होना है उसके लिए निश्चय परमेश्वर ने एक समय निश्चित किया है, And He has made everything beautiful in its time. और उसने अपने समय में सब कुछ बिल्कुल सुंदर बनाया है। Say, Lord, कहिए, प्रभु you have made everything आपने सब कुछ बनाया है, beautiful in its time. अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया, Beautiful in its time. अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाया। Everything shall be made beautiful for me. मेरे लिए सब कुछ सुंदर बनाया जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Yes, everything shall become beautiful. हाँ, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। And now, how to bring this to us on earth? और अब इन्हें पृथ्वी पर कैसे लेकर आए? The Bible says in Ephesians 1:3, और बाइबल इफिसियों 1:3 में ये कहती है, God put all these plans of God, which is unto good, in Jesus and sent him into the world. परमेश्वर ने ये सारी योजनाएं जो कि भलाई की योजनाएं वो सब यीशु में रखकर उसे पृथ्वी पर भेज दिया। Because the devil was in this world ruling as the prince of the world. क्योंकि शैतान इस संसार में था जो इस संसार के सरदार के रूप में काम कर रहा था। And the devil was only unleashing evil to the people. Even today he is doing that. और शैतान तो लोगों में केवल बुराई ही डालते जा रहा था, और आज भी वो यही तो कर रहा है। So God took the form of a man called Jesus. तो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लिया जिसका नाम यीशु था, Put all these good plans for us into himself और उसने परमेश्वर की ये सारी भली योजनाएं जो हमारे लिए थी अपने अंदर रख ली, and came into the world. और वो इस संसार में आए। And the Bible says और बाइबल कहती है in Hebrews 9:28, इब्रानियों 9:28 में, he sacrificed himself as a sacrifice for all these plans of God to
come to us, wicked people. और उसने अपने आप का बलिदान किया ताकि परमेश्वर की ये सारी जो भली योजनाएं वो हमें मिले, हम जैसे दुष्ट लोगों को मिले। Unless we become the child of God, we cannot have these good plans, good blessings from God. और जब तक कि हम परमेश्वर की संतान न बन जाए, हम परमेश्वर की ओर से ये अच्छी योजनाएं, अच्छी आशीषें नहीं पा सकते हैं। How to be cleansed from all our sins so that we can get these good plans from God. हम अपने पापों से कैसे शुद्ध हो सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की ओर से ये सारी भली योजनाओं को प्राप्त कर सकें। How to get the good blessings from God. परमेश्वर से हम कैसी अच्छी आशीषों को पा सकें। We have to be cleansed from our sins. हमें अपने पापों से शुद्ध होना चाहिए। Mankind should repent and turn to God and get the cleansing for their sins from God. और मनुष्य को तो पश्चाताप करना चाहिए और निश्चय परमेश्वर की ओर से वो शुद्ध हो जानी चाहिए। So God made a way. तो परमेश्वर ने एक मार्ग He बनाया, became a man वो मनुष्य बन गए and was pure as God. और वो बिल्कुल परमेश्वर जैसे शुद्ध थे। No sin was found in Jesus, who was God in flesh. और यीशु जो शरीर में परमेश्वर थे, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। And he offered himself as a sacrifice for all our sins to be forgiven. और उसने खुद को बलिदान के रूप में चढ़ाया ताकि हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए जा And his सके। blood was shed. और उसका लहू बहाया गया। And the Bible says और बाइबल कहती in है 1 John 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 में the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. कि यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Today when we come to Jesus आज जब हम यीशु के पास में आते हैं, and say, forgive my sin, Lord. प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए I कहते हैं, repent of my sin मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ and I leave my sin. और मैं अपने पापों को छोड़ देता I हूँ, turn from my wicked ways. मैं अपने बुरे मार्गों से फिर जाता हूँ। The blood of Jesus will come to you, तो यीशु का लहू आपके पास आएगा, cleanse you from sin, आपको पाप से शुद्ध करेगा, make you the child of God. आपको परमेश्वर की संतान बनाएगा, Your old sinful nature will go. आपका पुराना पाप में स्वभाव चला जाएगा। Then the same blood of Jesus, according to Hebrews 12:24, will intercede for you to God to bring God's plan into your life. इब्रानियों 12:24 के अनुसार वही यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो इसके लिए मध्यस्थी करता रहेगा। And the blessings come. और आशीषें आएगी, God's blessings come. परमेश्वर की आशीषें आएगी, It comes like a rain upon your life. ये आपके जीवन पर वर्षा के जैसे आएगी। Today, my friend, आज मेरे दोस्तों, as the Holy Spirit comes upon you, जैसे पवित्र आत्मा आप पर आता है, according to Romans 8:26-27, रोमियो 8:26 और 27 के अनुसार, you will humble yourself right now आप अभी अपने आप को नम्र करेंगे and ask God to forgive, और परमेश्वर से आप क्षमा मांगेंगे to give you grace to become the child of God and to do the will of God. कि आपको अनुग्रह मिले कि आप परमेश्वर की संतान हो और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। And He is cleansing you right now. और अभी इस समय वो आपको शुद्ध कर रहे हैं। I pray that the Holy Spirit shall come upon everyone who is listening to me right now. मैं प्रार्थना करता हूँ अभी इसी समय हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। Fill them, Lord. प्रभु इन्हें भर दीजिए। Help them to cry out to be cleansed of their sins. मदद कीजिए प्रभु कि ये पुकारे और अपने पापों से शुद्ध होने के लिए कहें। Every bondage of sin be broken now. अभी पापों का हर एक बंधन तोड़ दिया जाए। Every wrong relationship be removed right now. हर एक गलत संबंध अभी इस समय दूर किए जाए। Every wrong addiction and habit, leave them right now. हर एक बुरी आदतें, बुरी लतें अभी इन्हें छोड़कर चले जाए। Set them free, Lord. प्रभु इन्हें आप स्वतंत्र कीजिए। Set them free, Lord. प्रभु आप इन्हें स्वतंत्र कीजिए। Everybody cry to God. हर एक व्यक्ति प्रभु को पुकारिए। Lord, I want blessing. प्रभु मुझे आशीष चाहिए। Before that, cleanse me. उसके पहले मुझे शुद्ध कीजिए। Wash me. मुझे धो दीजिए। Transform me. मुझे बदल दीजिए। Change me as your child. मुझे अपनी संतान के रूप में बदल दीजिए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Let every sin go. हर एक पाप दूर हो Let जाए। every obstruction go. हर एक रुकावटें दूर हो। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, the blood of Jesus bring the blessings into everybody's life. यीशु का लहू हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष लेकर आए। Bless, Lord. आशीष दीजिए। Every blessing come.
हर एक आशीष आए, Every blessing come. हर एक आशीष आए, Showers of blessing come. आशीषों की वर्षा हो In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद, Thank you for this इस blessing. आशीष के लिए धन्यवाद, Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Amen. आमीन।